नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज द 11th डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2. So in surface chemistry part 2, we are going to discuss about colloidal solution. Before starting the video, I will request you to like and subscribe our channel. So let's start colloidal solution. So before starting colloidal solution, in liquid solution chapter, we have studied about a solution which is known as true solution. So according to true solution, it is a homogeneous mixture of two or more than two components present in a single phase. So here, single phase is important. So what is single phase? For a single phase, state of matter and chemical composition should be same. Like if I am making a solution of NaCl by dissolving NaCl solid in water, we are writing NaCl in aqueous state. So while writing NaCl aqueous means NaCl is dissolved in water, right? And when we see here, the state of matter of the whole system is liquid. Liquid is the state of matter, and if we take any portion of this solution and taste it, the taste will be same. It does not depend on amount of the substance we have taken, right? So everywhere the composition will be same taste, indicating that same composition throughout the system. So single phase is important. When we are discussing about single phase, it means that state of matter and chemical composition should be same. Like when we are discussing about allotropes, we are saying that between graphite and diamond, the state of matter is solid only, but their crystalline structures is different, right? In case of liquid, when we are discussing about solution, or in case of solid also, if we are saying that they are in different phase, means their crystalline structure should be different. If they are in same phase, means in case of liquid, their state of matter as well as their chemical composition should be same. So here we are discussing about colloidal solution. So true solution is a homogeneous mixture, but when we are discussing about colloidal solution is a heterogeneous mixture. So let me read it. It is a heterogeneous mixture of two components, DM and DP. So DM is known as dispersion medium, like it is like a solvent. It is continuous phase, right? Throughout the system, dispersion medium is there. So it is like a solvent. The other component is known as dispersed phase, DP, which is discontinuous, right? It is like solute. So it is dispersed throughout the dispersion medium. For example, if I'm taking a colloidal solution, silver sol, we are going to study about silver sol. So when we are writing silver sol, we should be careful that the DM is water, H2O in liquid state, and the DP is silver in solid state. Right. So when we write this silver sol, we'll write Ag and SOL. Sol means a solid dissolved in liquid, right? And we are going to discuss that how it is different, that when we are writing that in water, there is a precipitate of silver, and we'll say that there is a colloidal solution of silver. What is the difference between that? So in order to understand that, we have to understand that what is colloid, what is the definition of colloid. So we are saying here that it has two phases, DM is liquid and DP is solid. So it is when the DM is liquid and DP is solid, it has a special name. The name of the colloidal solution is known as sol. So let us start that what is colloid. So if you go through your NCERT, it is mentioned this definition that it is not a substance. It is a state of a substance in which the size of individual particles lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. So we should understand that what is the meaning of it is not a substance, it is a state of a substance. इसका क्या मतलब है? तो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को हमें डिस्टिंग्विश करना है, या हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि किस कंडीशन में सल्फर कोलोइड की तरह बिहेव करेगा और किस कंडीशन में सल्फर जो है वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, राइट? सो हियर वी हैव टेकन व्हेन वी डिसॉल्व सल्फर इनटू अल्कोहल, राइट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और सल्फर एसिड जब हम लिखते हैं
तो सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो हम कह सकते हैं एसिड मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक. So S8 molecule which is non-polar in nature is soluble in organic solvent like alcohol, right? तो अगर जब हम सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, राइट? So here when we are discussing about sulfur dissolved in alcohol, the solute is acid molecule, it is crystalloid. Crystalloid का मतलब है size of the particle, diameter of the particle is less than 1 nanometer and the solvent is alcohol, right? So DM is alcohol, right? यहाँ हम DM और DP नहीं कहेंगे क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहेंगे. लेकिन अगर हम सल्फर को वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं, राइट? So we know that ki sulfur is non-polar in nature and water is polar in nature. So sulfur is insoluble in water. So if we want to make colloidal solution of sulfur, we have to divide the sulfur into smaller parts by some chemical reaction. We are going to study in method of preparation of colloidal solution. Here we are not discussing that how we are preparing. We are saying that if the sulfur particles are lying between 1 nanometer to 1000 nanometer inside water, then we can say that this sulfur is acting like solute or DP and the solvent or DM is water. So when we are talking about sulfur acting like a colloid particle, thousands of acid molecules aggregate to form this colloid. So one sulfur molecule has very less size, its size is less than 1 nanometer, but when thousands of sulfur molecules will combine, their aggregation will form a bigger particle which is known as colloid. Take another example, like we are using soap and detergent. So when we are adding a soap in water at low concentration, then the soap particle, like I have taken sodium stearate here, I have dissolved in water. वाटर पे डिसॉल्व करने पे मैं लिख रहा हूं यहाँ C17H35COONA in aqueous state. So at low concentration, when the concentration of this salt is less than 10 to the power minus 4 molar, they will behave like normal electrolyte. They will dissociate into cation and anion. So the solute particle is C17H35COONA, which is existing in cationic and anionic form. So this is of the order of 10 to the power minus 9 or less than 10 to the power minus 9 meters. So this is acting like a crystalloid. So here solvent is water and the cation and anion, stearate ion and sodium ion is acting like crystalloid. अगर मैं इसी सॉल्यूशन में और सोप अगर ऐड करूंगा, so there is association of this stearate ion and they will associate to form micelle. There is a formation of micelle. We are going to discuss about micelle later, but here I am saying that there is association of 100 of stearate ion. बहुत सारे स्टीरेट आयन जो है वो कंबाइन होंगे और एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करेंगे और ये पार्टिकल जो है वो कोलॉइड पार्टिकल है. So when the concentration of soap is greater than equal to 10 to the power minus 4 molar and less than equal to 10 to the power minus 3 molar. Why we are taking less than? Because if you add more soap into it, the solution will be saturated. There is no benefit of dissolving it, right? So solute here is acting like micelle, which is solute is colloid particle who has a special name called micelle, and it is also known as associated colloid because it is formed by association of stearate ion and the solvent is water. So again here same substance under low condition is acting like crystalloid and under higher condition is like acting like colloid. So same definition that colloid is not a substance, it is a state of a substance in which the particle size lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. So classification of solution based on the size of solute particle. हम solutions को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ट्रू सॉल्यूशन जो हमने लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था वो ट्रू सॉल्यूशन था. देन colloid solution and suspensoid. So in case of true solution, the diameter of the solute particle is less than 1 nanometer. In case of colloid solution, the diameter is greater than 1 nanometer. It should be lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. And this is
for colloid solution, and suspensoid means the diameter of the particle should be greater than 1000 nanometers. So based on the size of solute particle, we can divide true solution, colloidal solution, and suspension. In this chapter, we have to study about colloidal solution, right? So when we are saying solute particle, if the size or diameter of the solute particle is less than 1 nanometer, it has a special name. It is known as crystalloid. When it is lying between 1 nanometer to 1000 nanometer, it is known as colloid. When it is greater than, its diameter is greater than 1000 nanometer, then the particle, solute particle, is known as suspensoid. Now, this is a classification of colloidal solution based on the state of matter of DM and DP, and this is very important. Many questions in JEE mains direct come from this table, and this table is very logical. You don't have to mug up, right? If you try to analyze it logically, you do not have to mug up, right? In your surrounding, you are finding things. If you try to relate them, it is easy to remember that which type of colloidal solution it is, right? So based on that, we can say that there are three state of matter: solid, liquid, and gas. So when the DP, solute particle, is solid, liquid, and gas, as well as the solvent particle is also solid, liquid, and gas, there are 9 combinations which can be formed. But gas and gas combination cannot make a colloidal solution because there is no interface, right? So we cannot say that there are two phases. Gases will mix and they will form true solution. So there are total 8 types of colloidal solution based on the state of matter of DM and DP. Let's go one by one. So here I'm taking the first example, right? And try to remember or try to analyze this logically, right? Don't mug up things. So when we are saying that our solute particle DP is solid and the solvent particle is also solid, so both are solid. So there is a common name. Common name for this is solid solution. So in solid solution, whenever the word solid solution is there, the DM must be solid, right? अभी हम इसको बार बार देखेंगे with the help of example. I'm just telling that what should be the common name, you should remember. तो solid का मतलब जितने भी हम gemstones देखते हैं ना, they are examples of solid in solid, right? So gemstones like ruby glass and all, right? Gemstones and ruby glass, so many gemstones are there. They are examples of solid in solid. Now the second example, when the solute is fixed, right? In these 3 examples, you can see that the solute is fixed, that is solid. So first example, I have written that solid dissolved in solid. The second is solid in liquid. When we are discussing solid in liquid, right? So this is very common in this chapter. We are using a word sol, like silver sol, gold sol, platinum sol, sulfur sol. Sol means solid dissolved in liquid, right? So this is very common to remember because we are in this chapter, we are going to use this again and again. And in lab, we are supposed to make certain colloidal sols, right? So when solid dissolved in liquid, it has a special name. That common name is known as sol. So examples are very simple: silver sol, gold sol, clay sol, paints, right? Paints, we are using paints, that is also an example. Or body में या plants में जो cells होते हैं उसका जो fluid होता है, that is an example of solid sol or sol, right? Solid dissolved in liquid. तो अभी ये जो सिल्वर गोल्ड है ये सब वाटर में insoluble है. We are going to study that they are lyophobic colloid solution, but अभी तो हम ये कहते हैं कि solid is dissolved in liquid, so it has a special name known as sol. Then the third example is when the solute is solid dissolved in gas. तो अगर कोई solid gas में चला जाए, right? Like smoke, when we do smoking cigarette and all that. So what is happening that with the smoke, there are carbon particles which is going in atmosphere, right? So because of that carbon particles, we see that that it is an example of aerosol. Whenever the solvent is gas, we are using a common name aerosol. So you will find aerosol here, you are finding aerosol here. So aerosol may, when the solvent is gas, there may be 3 combination. Gas combination is not there, so we can say there are 2 combination. Either the solid
is in air or gas, or the liquid is in gas, right? So when the dispersion medium is gas, it has a special name that is known as aerosol. So now if we take an example, when solid is in gas, we can say smoke, hedge, and storm. Hedge is the situation when dust particles are there in atmosphere, we cannot see through them, so that is known as hedge, right? And storm is the similar type of thing. So now the fourth example, now we have covered where all the solute particles are solid, right? There are three possibilities, we have covered all. Then the fourth example, liquid dissolved in solid. So liquid dissolved in solid means it has a special name that is known as gel. So the toothpaste we are using, right? The curd, cheese, boot polish, gel is, right? Toothpaste is also example of this. So this is gel, right? Fifth example is liquid dissolved in liquid. So that is known as emulsion. And there are two type of emulsion, oil in water and water in oil. Like when we are discussing about milk, milk is an example where most of the part is water. Water may agar oil ho, right? Then it is known as milk, right? So it is, milk is an example where the fat or oil is dissolved in water. Isliye milk is emulsion. Then mayonnaise, right? And here it is mentioned there are two type, oil in water, water in oil. Like जैसे हम butter की बात करते हैं, तो butter is an example where the water is dissolved in fat, right? Water is dissolved in oil. So butter and milk एक दूसरे के opposite है. So be careful about that. Hair cream which we are using is an example of emulsion. The next sixth example is liquid dissolved in gas. So liquid dissolved in gas, again the medium is gas, so it is aerosol. And fog, mist, cloud, insecticide spray, fog, mist, cloud, all these are related with water in air, right? So liquid particles in air is an example of aerosol. The seventh example is gas dissolved in solid. So gas dissolved, when the medium is solid, it is known as solid solution. पहले भी ये पहला वाला केस था solid solution, दूसरा वाला solid solution. एंड थर्ड जो एग्जांपल है, जब सॉलिड के अंदर लिक्विड हो तो उसका स्पेशल नेम है जेल, राइट? तो सॉलिड सॉल्यूशन, जेल एंड सॉलिड सॉल्यूशन इज द थ्री कॉम्बिनेशन वेयर द डीएम इज आवर सॉलिड. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे हम बाथरूम में बॉडी पे को रगड़ने के लिए हम एक पत्थर यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम प्यूमाइस स्टोन, और जो हमारा सोफा है उसमें हम फोम रबर यूज करते हैं. जैसे हम सोफे पे बैठते हैं तो उसमें जो फोम के अंदर एयर है वो बाहर निकलती है, तभी सोफा जो है वो कंप्रेस होता है. देन लावा, volcano ash, right? So these are examples where the gas is dissolved in solid. And the last example is gas in liquid. Gas in liquid is known as foam. जैसे अगर हम साबुन है, साबुन लगाते हैं और उससे झाग जो बनता है उसको कहते हैं लेदर ऑफ सोप और डिटर्जेंट, है ना? सो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यू नो दैट हेनरी लो वी आर यूजिंग, वी आर डिसॉल्विंग गैस इनटू लिक्विड. सो कोल्ड ड्रिंक्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, लेदर, whipped cream and froth, whipped cream and froth, right? So froth flotation process आपने मेटलर्जी में पढ़ा है. whipped cream से बहुत सारे हम कुकीज बनाते हैं, राइट? एंड cold drinks, soap and detergents, they are examples of gas dissolved in liquid, right? तो अभी हमने जितने भी ये 8 टाइप में, ये चाह रहा हूं बार बार रिवाइज करके कि आपको याद हो जाए, लॉजिकली याद हो जाए. तो पहला था एरोसोल, राइट? हम जब एरोसोल की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस है. तो गैस के अंदर गैस डिसॉल्व होगी तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो एक डिस्कार्ड हो गया. अब दूसरा है कि सॉलिड इन गैस. तो अगर सॉलिड गैस के अंदर है, राइट, तो हम इसको एरोसोल कहते हैं. और एग्जांपल में हमने अभी डिस्कस किया, स्मोक है, हेज है, स्टॉर्म है, दे आर एग्जांपल ऑफ दैट. देन द सेकेंड केस इज लिक्विड इन गैस. तो अगर वाटर है गैस के अंदर तो मिस्ट फॉर्म होगा, फॉग फॉर्म होगा, एरोसोल होगा, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं बेस्ड ऑन लिक्विड इन गैस.
सॉलिड सोल में जो सॉल्वेंट है या जो डीएम है वो सॉलिड है, और 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे सॉल्वेंट या डीएम जो है वो सॉलिड है। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है, वो कॉम्बिनेशन का हम स्पेशल नेम देते हैं जेल। इसलिए इसमें केवल 2 आ रहे हैं सॉलिड सोल में। सॉलिड इन सॉलिड मींस ऑल द जेमस्टोन्स, एंड गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड वी हैव डिस्कस्ड कि प्यूमाइस स्टोन है, अगर पत्थर को पानी के ऊपर फेंको तो वो तैरता है ना। रामायण में ऐसा है, नील और नल ने पत्थर को फेंका और वो पानी पे तैर रहा है, राइट। सो दोज टाइप ऑफ स्टोन्स, प्यूमाइस स्टोन बाथरूम में जो हम यूज करते हैं वो भी एक ऐसा ही स्टोन है। तो वैल्केनो से जो ऐश मिलती है या वैल्केनो से जो स्टोन मिलते हैं उसमें गैस रहती है, इसलिए इस तरह के स्टोन्स फॉर्म करते हैं, राइट। इमल्शन वी हैव डिस्कस दैट लिक्विड इन लिक्विड, एंड 2 चीजों को ध्यान रखना है कि मिल्क और बटर। तो मिल्क में क्या है कि फैट डिसॉल्व्ड इन और ऑयल डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इसका रिवर्स जो है वो बटर में। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट जेल, अभी डिस्कस किया था कि जेल में क्या है, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। तो लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड लाइक टूथपेस्ट, कर्ड, बूट पॉलिश, दे आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। सोल मैंने बताया इस चैप्टर में हमें सोल ही पढ़ना है। जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं सोल। फोम, फोम का मतलब है कि गैस इन लिक्विड, राइट। सो व्हेन गैस इन लिक्विड, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, या हम जब कपड़े धोते हैं, मिसल फॉर्मेशन है, दे आर एग्जांपल ऑफ फोम। ना ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो बटर, पहले ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था कि बटर का मतलब होता है लिक्विड इन सॉलिड। बटर जो है इसको हम कंसीडर करते थे पहले लिक्विड इन सॉलिड, और जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड, राइट। सो हियर लिक्विड इन सॉलिड इसलिए कहते कि थे क्योंकि बटर को जब हम फ्रिज में रखेंगे तो बटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो सॉलिड स्टेट में बटर एग्जिस्ट करता है, एंड दे आर सेइंग लिक्विड इन सॉलिड। ज्यादातर पोर्शन जो है वो फैट का है बटर में। तो सॉलिड फॉर्म जो है वो फैट है और लिक्विड फॉर्म जो है वो वाटर है। बट नाउ अकॉर्डिंग टू अवर न्यू एनसीईआरटी, अगर ये फ्रिज में नहीं हो, नॉर्मल बटर की बात करें, जब मेंशन नहीं है टेम्परेचर, इसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर। तो अभी नए एनसीईआरटी में इन्होंने क्या कर दिया है कि रूम टेम्परेचर पे जब हम बात करेंगे तो बटर का मतलब हो गया लिक्विड इन लिक्विड, राइट। सो हियर अगर कुछ मेंशन नहीं है और अभी अभी मेंस में ये पूछते हैं कि बटर किस तरह का है, तो जो एनसीईआरटी नई वाली है उसमें दे रखा है इट इज लिक्विड इन लिक्विड, एंड लॉजिकल है कि बटर रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड होगा, फ्रिज के अंदर सॉलिड होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। Now we are discussing certain type of colloid or colloidal solution. So we are starting with lyophilic colloids. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, राइट। तो अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके। लायोफिलिक कोलॉइड्स का मतलब होता है कि इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद डीएम। जो सॉल्यूट पार्टिकल है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज इजी टू प्रिपेयर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, दे आर स्टेबल एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। Examples, organic big molecules like gum, egg albumin, starch, protein। बहुत सारे हमारे बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बॉडी में, हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर के अंदर हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दे हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो, सो दे विल अट्रैक्ट वाटर। तो बहुत सारे, जैसे हमारे बॉडी में स्टार्च है, ग्लूकोज है, राइट, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव अफिनिटी विद वाटर, सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक। उसके अलावा हमें लैब में 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के। एक तो ये है कि हम स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएं। तो स्टार्च सॉलिड है और सॉलिड को हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं, राइट, टू फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन। पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं, वो रेंज होना चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग, लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो और उस डिस्टिल्ड वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे वार्म करते हो, और देन यू put a paste of water and that starch, slowly you mix it, then there is formation of colloidal solution। so ये 3 तरह के preparations आपको पता होना चाहिए, they are lyophilic। एक तो प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ गम सोल, एंड तीसरा है एग एल्बुमिन सोल। तो लैब मैनुअल में अगर आप जाओगे तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इनके बारे में डिस्कस कर दूं।
कि हमें अगर स्टार्च का कोलोडल सॉल्यूशन बनाना है या सोल बनाना है तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टार्च एंड डिस्टिल्ड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, स्टार्च के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होगा। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ गम सोल, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग गम इन वार्म वाटर इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो ये पूछा जाता है कि बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट, it will form a precipitate. It can prepared by mixing gum in warm water instead of boiling water. और तीसरा है एग एल्बुमिन। तो एग के अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं। जब आप एग को खोलते हो तो एक जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है और एक यॉल्क होता है, राइट, येलो कलर का, वो दो अलग अलग तरह के प्रोटीन है। तो एग एल्बुमिन जो है ना, वो व्हाइट वाला पोर्शन है जिसमें वाटर ज्यादा है और प्रोटीन कम है। So preparation of egg albumin sole, it can be prepared by mixing egg albumin with cold water. It is colorless liquid which is known as albumin. और जो येलो वाला पार्ट होता है वो अलग तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम येलो यॉक कहते हैं, राइट। तो ये तीन मेथड है। तो फिर याद दिला रहा हूँ, स्टार्च को 100 डिग्री सेल्सियस पे, गम को वार्म वाटर में, और जो एग एल्बुमिन है उसमें हीट करने की जरूरत नहीं, हीट करने पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोल्ड वाटर में ही वो आसानी से मिक्स करने पे कोलोडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। Then the other is lyophobic. You know that in case of lyophobic colloidal solution, there is no attraction between DM and DP. राइट, अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होता तो सॉल्युबल होता। इट हैज नो अफिनिटी विद डीएम, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, दे आर अनस्टेबल एंड इरिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? इससे पहले हमने कहा था कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है लायोफिलिक, वो रिवर्सिबल है। जैसे मैंने स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया और फिर मैंने उसको इवोपरेशन के लिए छोड़ दिया, तो वाटर अलग हो जाएगा, वो सॉलिड अलग हो जाएगा, सॉलिड जो लेफ्ट होगा वो स्टार्च होगा। अब मैं फिर डिस्टिल वाटर और उस जो बचा हुआ सॉलिड है उसको फिर मिक्स करूंगा, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब मैं उसको रिवाइज रिसाइकल कर सकता हूं बार बार, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। इट हैज नो अफिनिटी एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो अभी डिस्कस करते हैं सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म लायोफोबिक कोलोइड। जैसे सल्फर है, पानी में इनसॉल्युबल है, गोल्ड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सिल्वर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, आर्सेनिक सल्फाइड इज इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्ट या जो कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल है, फ्रॉम फॉर देम वी कैन प्रिपेयर लायोफोबिक कोलोइड सॉल्यूशन। इरिवर्सिबल का नेचर है का मतलब ये है कि जैसे मैंने सिल्वर सोल बनाया, तो पहले सिल्वर हमारे पास नेचर में जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा पार्टिकल है सॉलिड। तो हम उसको क्या करते हैं कि एक ब्रिडिग आर्क मेथड होता है जिसमें हम बड़े पार्टिकल को डिस्पर्स करते हैं, छोटा पार्टिकल बनाते हैं। जब वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है तो फिर कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है। अब अगर हम दोबारा उसको कोलोइडल सिल्वर को जो है अगर कंबाइन करें, मतलब जैसे मैं इवोपरेशन की बात कर रहा हूँ, वाटर अगर मैंने रिमूव कर दिया तो जो सिल्वर है वो कंबाइन होके सॉलिड बन जाएगा। तो अगेन मैं अगर सिल्वर और वो वाटर को, डिस्टिल वाटर को मिक्स करूंगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मुझे दोबारा उस सिल्वर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ब्रिडिग आर्क मेथड से। तो इसका मतलब होता है इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। सो प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्राइड सोल, राइट। सो ये जो प्रिपरेशन है वो लैब मैनुअल में है, इसलिए इन रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है। यू आर सपोज टू डू एक्सपेरिमेंट इन लैब। तो क्या करते हैं हम कि बॉयल वाटर लेते हैं और इस बॉयल वाटर में FeCl3 एक्वस मीडियम में होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप FeCl3 को हम बॉइल्ड वाटर में ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट विल टेक प्लेस। तो इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब फेरिक हाइड मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सॉल्ट इज रिएक्टेड विद वाटर, इट विल फॉर्म बेस एंड एसिड, राइट। सो ये जो बेस है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो केवल कुछ पार्टिकल्स ही फेरिक हाइड्रोक्साइड के कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होके कोलोइडल रेंज में आ रहे हैं। जब बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन हो जाएंगे जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तब हम उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट या सस्पेंसॉइड, राइट। तो अभी यहाँ सोल लिखा हुआ है, सॉलिड एस नहीं लिखा है, एस का मतलब प्रेसिपिटेट, सोल का मतलब है द पार्टिकल साइज ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, राइट।
The second example is preparation of aluminium hydroxide salt. Same method है, aluminium chloride को boil water में हम drop by drop add करते हैं जिससे इसकी hydrolysis होती है, and aluminium hydroxide is also sparingly soluble in water. So when the size of aluminium hydroxide molecules lies between many will combine to form this colloidal particle, right? तो जब बहुत सारे aluminium hydroxide के पार्टिकल्स कंबाइन होके कोलॉइडल रेंज में आ रहे हैं तो उसको हम सोल कह रहे हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल भी बन सकता है। इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल, दिस इज ऑल्सो देयर इन योर लैब मैनुअल। तो हम क्या करते हैं कि आर्सेनिक ऑक्साइड सॉलिड जो है ये पानी में इनसॉल्युबल है, तो हम बॉयल वाटर में इसको ऐड करते हैं। बॉयल वाटर में ऐड करने से इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड, एंड दिस आइज आर्सेनिक, दिस बेस इज रिएक्टेड विद एसिड H2S and there is formation of arsenic sulfide. Again arsenic sulfide is insoluble, but जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो बहुत क्या कहेंगे, मॉनिटर्ड वे में हम आर्सेनिक ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे और H2O को उसमें पास करेंगे सो दैट प्रेसिपिटेट ना बने, कोलॉइडल पार्टिकल ही फॉर्म हो, राइट? So this is the overall reaction. If you add these two reactions, you are getting that arsenic oxide in solid state, 3 times of H2S in aqueous state. In boiling water, all these things are taking place. So there is formation of arsenic sulfide, sol and water, right? So this is the overall reaction. ये तीनों जो है लैब में you are supposed to do experiment, right? So that's why these reactions are important. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होता है। When we are discussing about properties, then that thing will come. मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड, नाम में ही इसमें रटना कुछ नहीं है, मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलके एक कोलॉइड पार्टिकल बनाएंगे तो उसको हम मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड कहेंगे। जैसे सिल्वर है या सल्फर सोल है, एक सिल्वर एटम बहुत छोटा है तो 1000 ऑफ सिल्वर एटम कंबाइन होंगे तब एक कोलॉइड पार्टिकल बनेगा जिसको मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड कहेंगे। या सल्फर है, एक मॉलिक्यूल सल्फर का बहुत छोटा है, 1000 ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। सो let me read the definition. A large number of smaller atoms or molecules of a substance aggregate together to form a particle having a size of colloidal range, then it is known as multimolecular colloid. अभी डिस्कस किया, सिल्वर सोल है, सिल्वर का एक एटम कोलोइडल पार्टिकल नहीं बना सकता, 1000 ऑफ सिल्वर एटम्स आएंगे तो कोलोइडल पार्टिकल बनेगा, या सल्फर के 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, अगेन नाम में ही लिखा है मैक्रो मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? लाइक एंजाइम है या प्रोटीन है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, दे आर पॉलीमर्स। So when we are discussing about this macromolecular colloid, we reduce the size of big molecules so that it lie in colloidal range. तो बड़े मॉलिक्यूल को हमें छोटा करना है। जैसे नेचर में बहुत सारे पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स जो है हमारे पास, वो रबर है, इट इज अ नेचुरल पॉलीमर, या स्टार्च है, प्रोटीन है, एंजाइम है, जिलेटिन है, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स वी नो दैट नायलॉन, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। तो हम करते क्या है कि जैसे ये नायलॉन, पॉलीथीन और प्लास्टिक है, ये सिंथेटिक हैं या आर्टिफिशियल हैं, तो इनको हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तब इनका साइज छोटा हो जाता है, दे बिकम स्मॉलर इन साइज एंड दे विल कम इन कोलोइडल रेंज, देन विल से दैट इट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बड़े मॉलिक्यूल को डिस्पर्स करके, ब्रेक करके छोटा मॉलिक्यूल बनाया जो कोलोइडल रेंज में आए, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड। तो बॉडी में हमारे बहुत सारे मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस और एडवांस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। नाम क्यों रखा है? क्योंकि एसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस जो है एसोसिएट होके जब कोलॉइडल रेंज में आते हैं तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ मीडियम बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट क्रिस्टलाइट। जैसे अगर मैं सोडियम स्टीरेट है, सोप है, उसको अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो वो
अगर लो कंसंट्रेशन है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. सोडियम स्टीयरेट इज C17H35COONA. व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल फॉर्म स्टीयरेट आयन व्हिच इज क्रिस्टलॉइड, and Na plus ion which is also crystalloid. Their size is less than 1 nanometer. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम और ऐड कर रहे हैं सोप को. तो जब हम सोप का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, लो कंसंट्रेशन पे दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बट बिहेव्स लाइक अ कोलोइडल पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन. तो जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे ये एक मोनोमर है, मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ स्टीयरेट आयन है ना, ये है, ये स्टीयरेट आयन है. तो जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन में, हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे स्टीयरेट आयंस होंगे, राइट. और ये स्टीयरेट आयन जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पास पास हो जाएंगे. और ये ऑर्गेनिक के बड़े मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोकार्बन वाला टेल वाला जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, नॉन पोलर पार्ट बहुत बड़ा है. इनके बीच में वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. और ये जो हेड है विच इज पोलर इन नेचर, ये वाला पार्ट पोलर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा. तो व्हाट विल हैपन दैट दे विल अरेंज इन सच अ मैनर, वेंडरवाल फोर्स की वजह से ये एसोसिएट हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे विल एसोसिएट टू फॉर्म अ मिसल, राइट. बड़ा पार्टिकल बन गया, एसोसिएशन से बन गया, इसलिए इसका नाम है एसोसिएटेड कोलॉइड, राइट. सो important, at low concentration they are behaving like a crystalloid, at higher concentration they are associate to form a bigger particle colloid, राइट. और इस पार्टिकल को हम मिसल भी कहते हैं. तो यहाँ पे इसको शो कर रखा है, ये स्टीयरेट आयन है, इसको कहते हैं हम हेड. और ये हाइड्रोफिलिक है क्योंकि ये पोलर इन नेचर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है. और आपको पता है कि वाटर भी पोलर है. तो अगर वाटर और ये आपस में मिलके क्या होंगे, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड ऑफ दिस एंड पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर. वाटर का पॉजिटिव एंड का मतलब हो गया हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. So because of this electrostatic force of attraction we'll say that it is hydrophilic in nature. और ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट मतलब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, राइट. सो दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक. तो ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं होगा, इट इज हाइड्रोफोबिक, इट विल रिपेल वाटर एंड दिस विल अट्रैक्ट वाटर. हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर पार्ट में ऑयल में सॉल्युबल होगा, और ये जो है वो पोलर पार्ट है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो ये दोनों तरीके से कंबाइन हो सकता है. एक तरफ से ये वाटर से कंबाइन हो सकता है, दूसरी तरफ ये ऑयल से कंबाइन हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सोप एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट. तो उसको अभी डिस्कस करते हैं. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने सोप को डिसॉल्व किया है. अगर सोप का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोलर से कम है तो ये नॉर्मल क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा. तो हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होंगे, हर जगह होंगे, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. तो ये जो है पार्ट, ये स्टीयरेट आयन है या मोनोमेरिक फॉर्म है, और ये जो पार्ट है ये Na प्लस आयन है, सोडियम आयन है. बोथ आर एक्टिंग लाइक क्रिस्टलॉइड इन दिस पोर्शन, राइट. और ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन अब जब हम मिसल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इट इज अ बल्क फेनोमेना. बल्क फेनोमेना का मतलब अंदर जो लिक्विड के अंदर जो स्टीयरेट आयन है, ड्यू टू वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे विल कंबाइन टू फॉर्म दिस मिसल, राइट. तो ये जो है वो मिसल फॉर्मेशन शो कर रखा है, और ये बल्क फेनोमेना, ये अंदर होगा, मीडियम के अंदर होगा, सरफेस पे नहीं होगा. तो ये जो कंसंट्रेशन रेंज है 10⁻⁻⁴ मोलर टू 10⁻⁻³ मोलर, इस रेंज में दे विल कंबाइन, क्योंकि बहुत सारा कंसंट्रेशन है और ये स्टीयरेट आयन पास पास है, तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो टेल है, नॉन पोलर पार्ट, वो कंबाइन हो जाएंगे, और पोलर पार्ट रिपल्शन की वजह से आपस में दूर दूर होंगे. तो ये इस तरह का पैटर्न क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं मिसल. दिस इज नोन एज मिसल, राइट. सो यू नो अबाउट दैट. तो एसोसिएटेड कोलॉइड नाम क्यों पड़ा ये आपको पता चल गया. और ये रेंज इंपॉर्टेंट है फॉर सोप. दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी. दे विल आस्क इन मेंस 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻3. ज्यादा ऐड करने पे वो डिसॉल्व नहीं होगा ना, सॉलिबिलिटी भी मैटर करती है टेम्परेचर पे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ऐड करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, डिसॉल्व ही नहीं होगा सोप. नाउ सोप जो है
सोप एंड डिटर्जेंट्स कैन एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट बिटवीन ऑयल एंड वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि दे आर इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हमें पता है वाटर और ऑयल आपस में सॉल्युबल नहीं है, तो अगर उनको साथ साथ रखना है तो हमें एक ऐसे कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो दोनों से कनेक्ट कर पाए, एंड दैट इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट, राइट। सो हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल। ये पानी है, इस पानी में किसी कपड़े के ऊपर ये ग्रीस है, राइट, दिस इज ग्रीस। ग्रीस मतलब ऑयल है, राइट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसमें भी ऑयल पार्टिकल होते हैं, राइट। तो ये कपड़े के ऊपर कोई ग्रीस है और हम इसको कपड़े से हटाना चाहते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें डिटर्जेंट ऐड कर दिया। डिटर्जेंट या सोप ऐड करने पे क्या हुआ कि देयर इज मिसल फॉर्मेशन। तो जब ये मिसल फॉर्मेशन हुआ तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो इस ग्रीस के अंदर डिसॉल्व हो गया और पोलर पार्ट वाटर के अंदर है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो पोलर पार्ट है इसकी वजह से ये पूरा पोलर पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो है अपने साथ में ये ग्रीस के पार्टिकल को वाटर में स्टेबलाइज करेगा। तो इसके चारों तरफ वाटर पार्टिकल हो गए और अंदर जो है वो नॉन पोलर पार्ट ग्रीस के अंदर है, तो ये इस सरफेस से अलग हो गया, राइट। तो इस तरह से हम कपड़े को साफ करते हैं। जब हम क्या करते हैं कि पहले जो पानी है, पानी में जो है वो, या तो आप ये कह लो कि पानी के अंदर पहले हम सरफेक्टेंट को मिला देते हैं और फिर कपड़े को ऐड करते हैं। कपड़े को ऐड करने के बाद कपड़े के ऊपर जो ग्रीस है उस पे इस तरह का मिसल फॉर्मेशन होता है और फाइनली ये ग्रीस पार्टिकल जो है वो क्लोथ से अलग होके वाटर में आ जाता है, राइट। सो दैट इज नोन एज emulsifying agent, right? Soap and detergents are emulsifying agent. They have discussed about the mechanism of emulsification, right? The formation of this missile takes place above a particular temperature known as Kraft temperature. तो ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये सेंस तो होना चाहिए कि जब हम सोप और डिटर्जेंट्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर हम टेम्परेचर यूजुअली जब बढ़ाते हैं, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जहां पे इतना कंसंट्रेशन हो जाए कि वो मिसल फॉर्मेशन कर पाए। सो द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन known as CMC, critical micellization concentration. Like for soap, you should know that the value of CMC is 10 to the power minus 4 molar to 10 to the power minus 3 molar. It will vary from different type of detergents and soap, right? Soap के लिए आपको ये वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। A missile may contain 100 or more such ions. जैसे हमने जब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की बात करी थी तो वहां कहा था कि एक सिल्वर एटम या एक एसिड मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, तो 1000 ऑफ सिल्वर एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। यहाँ जब हम सरफेक्टेंट की बात करते हैं, जब हम सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो जो हमारा स्टीरेट आयन है या जो सरफेक्टेंट का एनायन या कैटायन है, राइट, जो कंबाइन होके एक मिसल फॉर्म करने वाला है, उसका साइज बड़ा है। इसलिए 1000 की जगह केवल 100 या 100 के आसपास मॉलिक्यूल्स कंबाइन, आयंस कंबाइन होंगे, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल। सो दिस 100 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, while in case of multimolecular that is 1000. Examples of surfactant, कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में केवल दे रखे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो बिकॉज ये 9th-10th में भी है कि एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेक्टेंट। तो अभी सोडियम स्टीरेट तो सबको याद हो गया होगा, C17H35COONA। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम पाल्मिटेट। So here in sodium palmitate, the number of carbon atoms is 15. So C15H31COONA, right? The third example is sodium lauryl sulfate. So this is CH3CH211OSO3Na. And the last example is cetyl trimethyl ammonium bromide. तो अभी ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, इससे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोप। तो सोप में आपको ये याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए ऑफ हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, राइट। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, और हमें याद कि फैटी एसिड का मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए।
COOH ग्रुप होना चाहिए फैटी एसिड में, राइट। तो अभी जैसे इन दोनों में ये दोनों सोप है, दीज आर सोप, राइट। ये जो है सोडियम लॉरियल सल्फेट, दिस इज डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट है, ये सोप नहीं है, दिस इज डिटर्जेंट, राइट। सेथिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी डिटर्जेंट है, दिस इज डिटर्जेंट। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सोप है, कौन सा डिटर्जेंट है। तो अगर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड का हो तो वो हो गया सोप, बाकी हो गया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी कई तरह के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक भी होते हैं, राइट। तो जैसे अभी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है वो कैसा है, तो ये एनायनिक है। आपको पता है कि ये पानी में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन मिसल फॉर्म करेगा, ये वाला पोर्शन मिसल फॉर्म करेगा, राइट। सो इट इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। और यहाँ अगर हम देखें तो Br- आयन अलग हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो कैटायनिक सरफेक्टेंट, एनायनिक सरफेक्टेंट, या ये जो है वो सोप और डिटर्जेंट में ये जो पोर्शन है, ये वाला डिटर्जेंट वाला जो पोर्शन है, ये वाला एनायनिक है और ये कैटायनिक है, राइट। अमंग द फॉलोइंग द सरफेक्ट, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पे बेस, जेई एडवांस में 2018 में पूछा गया था और बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है ये। अमंग द फॉलोइंग द सरफेक्टेंट दैट विल फॉर्म मिसल in aqueous solution at the lowest molar concentration at ambient conditions is, और ये नाम दे रखे हैं, लोअर CMC की बात हो रही है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पे कौन पहले मिसल फॉर्मेशन करेगा, तो हमें ये देखना है कि ये जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें या तो कैटायन है या एनायन है, जो भी सरफेक्टेंट पार्टिकल, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अगर ये जो नॉन पोलर पोर्शन जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा होगा। और हमें पता है वेंडरवॉल फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है जितना ज्यादा बड़ा होगा, कम मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी आपस में मिसल फॉर्म करने की, क्योंकि अगर एक पार्टिकल बड़ा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, और पार्टिकल बड़ा होगा तो लो कंसंट्रेशन पे भी इनमें वेंडरवॉल फोर्स डोमिनेट करेंगे और ये कंबाइन होकर मिसल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि लोवेस्ट मोलर कंसंट्रेशन, मतलब हमें वो पार्टिकल देखना है जिसमें नॉन पोलर पार्ट जो चेन है कार्बन की वो काफी लंबी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लो कंसंट्रेशन पे भी वो कंबाइन होके मिसल फॉर्मेशन कर सकता है। तो इन सारे एग्जांपल्स में अगर कार्बन चेन की बात करी जाए तो सबसे बड़ी कार्बन चेन ये है। और अगर दूसरा सवाल यही पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सोप है, कौन सा डिटर्जेंट है ना। तो ये थर्ड वाला एग्जांपल सोप का है, बाकी सारे डिटर्जेंट है। इसमें भी कौन सा कैटायनिक है, कौन सा एनायनिक है, ये सोप एनायनिक है, ये डिटर्जेंट एनायनिक है, और ये डिटर्जेंट कैटायनिक है, और ये वाला डिटर्जेंट भी कैटायनिक है। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे कैन आस्क, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में, वेरी कॉमन, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसल। अ डिटर्जेंट, ओके, सो ये दे रखा है डिटर्जेंट का फॉर्मूला, सॉल्यूशन बिकम अ कोलोइडल सॉल्यूशन एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power -3 मोलर। On an average, 10 to the power 13 colloidal particles are present in 1 millimeter cube. What is the average number of ions that are present in one colloidal particle? तो हम ये कह रहे हैं कि जब मिसल फॉर्मेशन की बात हो रही है तो इस मिसल फॉर्मेशन में ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे मिसल्स होंगे ना, एंड इट इज अ बल्क फेनोमेना, सब अंदर होंगे, सरफेस पे नहीं होंगे। मिसल फॉर्मेशन इज अ बल्क फेनोमेना। तो ये मिसल है। अब हमें ये निकालना है कि ये मिसल में कितने आयंस है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस। अभी हमने पढ़ा कि आयंस की संख्या लगभग 100 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, in order to form associated colloid, because इनका खुद का साइज बड़ा होता है। तो they are saying that कि जिस कंसंट्रेशन पे ये मिसल फॉर्मेशन हो रहा है, सोप का कंसंट्रेशन या डिटर्जेंट का कंसंट्रेशन दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द डिटर्जेंट इज 10 to the power -3 कैपिटल M, ये है कंसंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट। On an average, 10 to the power 13 colloidal particles are present in 1 millimeter cube, राइट। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये तो वो दे रखा है कि जो हमने, क्योंकि एसोसिएटेड कोलॉइड है तो हमने जो डिटर्जेंट ऐड किया शुरू में वो
कोलॉइड क्रिस्टलॉइड होगा, बाद में वो कोलॉइड होगा। तो ये तो टोटल कंसंट्रेशन दे रखा है। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर हमने इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का 1 मिलीमीटर क्यूब लिया, इन दिस 1 मिलीमीटर क्यूब द नंबर ऑफ such type of missiles, they have given that the number of missiles is of the order of 10 to the power 13। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने सारे मिसाइल्स हैं, राइट। मिलीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो व्हेन आई विल सिंप्लीफाई दिस 1 मिलीमीटर क्यूब, राइट, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, सो दिस इज 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूं, तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब इज ml, राइट। सो इफ आई कन्वर्ट दिस इज 10 टू द पावर -6 लीटर। सो 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6 लीटर। 10 टू द पावर -6 लीटर में ये इतने सारे कोलोइडल पार्टिकल हैं, right? This is the number of colloidal particle in this. So I can calculate, because here the concentration is given, molarity is number of moles per liter. तो इतने में I can say that in 10 to the power -6 liter, the number of colloidal particle is 10 to the power 13. So how many colloidal particles are there in 1 liter? 1 liter में कितने colloidal particles होंगे? So that is equal to 10 to the power 19. 10 to the power 19 colloidal particles are there in 1 liter, and these colloidal particles have some ions, right? जैसे इस पर्टिकुलर में ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, तो एक colloidal particle में मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x आयंस हैं। so number of colloidal particles into x is equal to the total number of anions which are there in 1 liter. So here the concentration is 10 to the power -3. So I should write here that this is 10 to the power -3, means this is number of moles in 1 liter. एक मोल में we know Avogadro number of, so this is the number of this anion present in 1 liter of the solution. So if I simplify this, I can write that 10 to the power 19 into x is equal to, अगर एवोगैड्रो नंबर यहाँ गिवन होना चाहिए, that should be given as, अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 into 10 to the power 23 दे रखी है, then I can write that this value is equal to 6 into 10 to the power 20, है ना। यहाँ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से। इफ यू सिंप्लीफाई यू आर गेटिंग 60 आयंस शुड बी देयर इन 1 colloidal particle. Right, very common question. If you understand that what is happening inside it, तो इन्होंने ये दे रखा है 1 मिलीमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 लीटर में निकाला कि कितने कोलोइडल पार्टिकल है, right? So we got that in 1 liter this is the number of colloidal particle. In 1 colloidal particle how many ions are there multiplied by x, that should be equal to the total number of stearate or whatever this anion is there in 1 liter. So molarity is given, molarity into 1 liter is number of moles into Avogadro number is total number of anions, because here when you add number of anions and number of cations will be equal. So this is number of anions which will combine to form this number of colloidal particle. From there we are getting that the number of anions in 1 colloidal particle is 60. वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर सीएमसी, ये जेई एडवांस में 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो लेट अस डिस्कस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर सीएमसी। पहली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम की बात कर रहा हूं मैं, राइट। सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी increases on dilution. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बट हम यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। सो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, राइट, सो वी कैन से दैट लैम्डा एम शुड डिक्रीज। तो ये जो ग्राफ है लैम्डा एम का वो डिक्रीज होगा, सही बात है। तो व्हेन it is behaving like a normal electrolyte, we are increasing the concentration, lambda m is decreasing, but ये रेंज दे रखी है, ऐसा जो बीच में एक रेक्टेंगल बना है, दिस इज रेंज, राइट। सो दे आर डिस्कसिंग, क्योंकि सीएमसी के लिए एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं, रेंज है, इसलिए ये ऐसा ग्राफ बन रखा है। देन दे आर सेइंग दैट
आफ्टर सीएमसी ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा फास्ट डिक्रीज हो रही है। पहले धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी और अब ये ज्यादा फास्ट डिक्रीज हो रही है। कई बार आपको ये बस केवल नेचर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो कई बार आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल सकती है दोनों जगह, राइट। They are just discussing the nature that initially it is slowly decreasing and after CMC it is fast, decrement is fast with concentration of lambda m। ये हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब सीएमसी, जब मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल बड़े चार्ज पार्टिकल हैं। जैसे अगर मैंने कोई सोप लिया है तो मिसल जो है वो आयन से बना होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन से बना होगा। अब इससे पहले सीएमसी से पहले ये आयंस मोनोमरिक फॉर्म में थे, अकेले थे, तो इनका साइज रिलेटिवली छोटा था। मीडियम में दे कैन मूव मोर इजीली, नाउ दे बिकम बिगर। बिकॉज ऑफ बिगर साइज देयर मूवमेंट, देयर हिंड्रेंस विल बी मोर, सो मूवमेंट विल बी स्लो। सो एक रीजन तो हो गया कि बहुत सारे मोनोमेरिक फॉर्म पॉलीमेरिक फॉर्म में आ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम बिग एंड दीज बिग पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू मूव, राइट। इससे पहले इस सॉल्यूशन में Na+ आयंस भी थे, राइट। जब ये इस तरह के बड़े पार्टिकल्स मिसल फॉर्म हो गए तो दे विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, राइट। तो ये जो कैटायन है वो इनको सराउंड करेंगे, द कैटायन विल कम एंड सराउंड इट। इससे पहले जब मिसल फॉर्मेशन नहीं था तो ये जो कैटायन थे वो इतने बाउंडेड नहीं थे। नाउ दीज कैटायंस आर मोर बाउंडेड बिकॉज दिस इज मोर नेगेटिव। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कैटायंस पे लगाएगा वो ज्यादा लगाएगा। बिकॉज ऑफ दैट these cations movement is also becoming slow। so these are the two reasons because of which ये जो lambda m की वैल्यू है ज्यादा फास्ट डिक्रीज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू बिफोर सीएमसी एंड आफ्टर सीएमसी। आफ्टर सीएमसी ज्यादा फास्ट डिक्रीज करेगी। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री में जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे समझ लें पहले हम इस बात को कि क्या हो रहा है। जब मिसल फॉर्मेशन हो रही है तो हमने जब इसको सॉल्यूट को ऐड किया तो इनिशियली व्हेन द कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻⁴ मोलर, तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो स्टीयरेट आयन है वो हर जगह है, अंदर भी है और सरफेस पे भी है। जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि शुरू में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सरफेस पे भी ये स्टीयरेट आयन आ रहे हैं और ये सरफेस पे नॉन पोलर पार्ट है। और वाटर का जो सरफेस टेंशन है वाटर और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। वाटर पोलर है, अगर कोई नॉन पोलर चीज आ गई पोलर के बीच में तो वाटर और वाटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस टेंशन इज डिक्रीजिंग बिफोर सीएमसी, क्योंकि सीएमसी से पहले जब हम ऐड कर रहे हैं तो सरफेस पे पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, बल्क में तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन सरफेस पे भी पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। और सरफेस पे पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से, सरफेस पे नॉन पोलर पार्ट अधिक होने की वजह से सरफेस टेंशन लगातार डिक्रीज कर रहा है। नाउ अब जब हम सीएमसी की बात करते हैं तो जब हमने फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल स्टीयरेट आयन को इसमें ऐड किया, सोडियम स्टीयरेट को ऐड किया, तो सरफेस पे पार्टिकल्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सरफेस पे तो वही रहेंगे। जो भी हमने डिसॉल्व किया वो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और वो मिसल फॉर्म करेंगे, राइट। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल इनसाइड, ये अंदर हो रहा है, ये सरफेस पे पार्टिकल लगभग उतने ही है जितने पहले थे। तो जब सीएमसी की बात होती है और उसके बाद सीएमसी के बाद भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो कह रहा है कि दे विल फॉर्म मिसल इनसाइड द सॉल्यूशन। इट इज अ बल्क फेनोमेना, अंदर होगा, ये सरफेस पे नहीं होगा। तो जब हम शुरू में ऐड कर रहे थे तो सरफेस टेंशन लगातार डिक्रीज कर रहा था क्योंकि सरफेस पे स्टीयरेट आयंस की संख्या बढ़ रही थी। But after CMC, when we are adding stearate ion, the stearate ion in the solution is increasing and they are increasing in the form of micelles, right? There is almost no change in the concentration of stearate ion at the surface. तो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि CMC से पहले अगर हम सोप और डिटर्जेंट को ऐड कर रहे थे तो सोप और डिटर्जेंट को ऐड करने पे सरफेस टेंशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था। The surface tension was continuously decreasing and after CMC के बाद ये almost constant हो गया because missile formation जो है वो bulk phenomena है। This is very important, missile formation is not a surface phenomena, missilization is a bulk phenomena। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है
रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी तक पूछा नहीं गया है, तो व्हेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। तो सीएमसी से पहले इफ यू डिस्कस अबाउट बिफोर सीएमसी, दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वेयर द वेंट ऑफ फैक्टर आई विल बी 2। तो हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, दे आर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, स्टीरेट आयन एंड Na प्लस आयन सेपरेट हैं, सो आयंस की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वी कैन से दैट दिस होल वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग, राइट। तो ये हमने लिख दिया कि पाई इज इक्वल टू सीआरटी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट pi is directly proportional to concentration, it is a straight line। ठीक है, ये होगी वैल्यू। नाउ आफ्टर सीएमसी, सीएमसी के बाद ये बढ़ तो रहा है लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत स्लो है, राइट। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी ऐड, सपोज हमने 100 सोडियम स्टीरेट के पार्टिकल्स ऐड किए, तो 100 Na प्लस तो होंगे, लेकिन 100 जो स्टीरेट आयन है वो कंबाइन होके एक पार्टिकल बनाएगा, स्टीरेट आयन बनाएगा। तो अभी जो वेंट ऑफ फैक्टर है यहाँ पे, this Van't Hoff factor is greater than 1 but less than 2, right? Because of that Van't Hoff factor, now we can say that here before CMC Van't Hoff factor was 2, but after CMC Van't Hoff factor is less than 2 but greater than 1, and because of that this increase in osmotic pressure will be slow। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसका स्लोप कम है, ये स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप ज्यादा है। So these are the physical properties which will change before and after micellization. These are important. ये जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ सरफेस टेंशन, अगर हम कुछ ऐसा ऐड करते हैं, जैसे ये वाटर हो गया, इस वाटर में हम कुछ ऐसा ऐड करते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाए। अगर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो अगर हम कोई पोलर सब्सटेंस ऐड करेंगे, लाइक आयनिक सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज। सो ऑन एडिंग आयनिक सॉल्ट टू वाटर, इट्स सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अगर हम कुछ नॉन पोलर ऐड करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, it is non most of the organic compounds are non-polar and polarity is there, that is very less, right? So on adding organic compounds non-polar, its surface tension will decrease, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है कि सरफेस पे अगर ऐसे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है जो नॉन पोलर है, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन इज गोइंग टू डिक्रीज। सरफेक्टेंट में भी ऐसा ही है, हमने अभी डिस्कस ही किया कि सरफेक्टेंट में जब हम शुरू में सीएमसी से पहले सरफेक्टेंट को ऐड कर रहे हैं, तो सरफेस पे नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस टेंशन विल डिक्रीज एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। सो देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन जेईई एडवांस, राइट। सम ग्राफ्स आर देयर सो यू कैन रिलेट। आयनिक सॉल्ट को ऐड करने पे वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड करने पे कम होता है, सरफेक्टेंट को ऐड करने पे पहले कम होता है और बाद में कांस्टेंट हो जाता है, सीएमसी के बाद कांस्टेंट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसलाइजेशन, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मिसलाइजेशन मतलब अगर सीएमसी आ गया तो अपने आप ही मिसलाइजेशन होगा। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी नेगेटिव, राइट। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज अ एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, क्योंकि हम लिख रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे सोप और डिटर्जेंट्स हैं, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं या डीएम में डिसॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक है। दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है, सो वी कैन नॉट से दैट delta H misalization is always endo, right? It may be exo or it may be endo. There are many examples of endo, many examples of exo. लेकिन ये फिक्स है कि डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आप जरा सोचो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कब हो सकता है? वो तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है माइनस टी डेल्टा एस की, ये नेगेटिव हो गई और इस नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव से ज्यादा है, तभी डेल्टा जी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वॉच अवर वीडियो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिसल फॉर्मेशन, क्योंकि मेंस वालों ने, एनटीए ने जो इसकी आंसर की में एरर करी है, एंड दिस इज गिवन इन वेरी गुड रेफरेंस बुक, एटकिंस में दे रखा है।
ठीक है, मैंने वो पेज भी वहां पे दिखाया है आपको, तो आप एक बार जाके देख लेना इसको। जेई एडवांस में आएगा तो जो मेंस ने आंसर दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट होगा, राइट। सो इट्स अ एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, मिसलाइजेशन इज एंट्रोपी ड्रिवन, ठीक है, क्योंकि इंथैल्पी कुछ भी हो सकता है लेकिन एंट्रोपी की वजह से ही। एंड वी कैन से दैट कई लोगों को ऐसा लगता है कि मिसल्स में क्या हो रहा है कि व्हाट जो सपोज सोडियम स्टीयरेट हम ऐड कर रहे हैं और स्टीयरेट आयन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जब स्टीयरेट आयन आपस में कंबाइन हो रहा है तो लोगों को लगता है कि मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है कि पहले जब ये ट्रू सॉल्यूशन था, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल थे, तो हर जगह एक्वस मीडियम एक्वस मीडियम। अब क्या होगा, जब ये कोलोइडल पार्टिकल्स बनेंगे तो ये वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, तभी तो दो फेस होंगे, एक डीएम होगा एक डीपी होगा। तो जब हम वाटर को, जब ये मिसल फॉर्मेशन हो रही है तो ये मिसल्स जो फॉर्म कर रहे हैं स्टीयरेट आयन, ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह से रिप्लेस हो रहा है, तो वाटर की भी इंट्रोपी चेंज हो रही है। केवल हम पॉलीमराइजेशन के बारे में ना सोचे, वाटर के बारे में भी सोचे, राइट। तो वाटर को डिस्प्लेस करने को कहते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, और हम दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तब नेट रिजल्टेंट आएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है कि इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मिसलाइजेशन। और एक लॉजिकल और मैथमेटिकल वे हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोपी चेंज अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा जी नेगेटिव है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो। तो आप ये वीडियो देख लेना, इसमें बहुत डिटेल से समझाया गया है। इंथैल्पी चेंज ऑन मिसलाइजेशन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट इंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है। इंट्रोपी चेंज ऑफ मिसलाइजेशन, मिसलाइजेशन में इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी मैंने बोला कि मिसल में ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें हमें दो कंपोनेंट के बारे में सोचना होगा, वाटर के बारे में सोचना होगा, और क्या बोलते हैं, मोनोमर इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, राइट। तो वाटर मोनोमर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, हम केवल आधा सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट रिजल्टेंट आएगा डेल्टा एस, मिसलाइजेशन इज पॉजिटिव। सारी अच्छी किताबों में यही दे रखा है, पता नहीं एनटीए वालों ने क्या किया है ये, ठीक है। तो आई होप कि मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन, अब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज are left, but till there I have discussed all the important points of colloidal solution, ठीक है। तो आज हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे क्वेश्चंस एसोसिएटेड कोलोइड से आते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, राइट। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और टेंशन ना लें, ठीक है। अगर जिन लोगों को लग रहा है कि इस अभी तक आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस, ठीक है। अभी अप्रैल में भी एक बार होगा, तो जो लोग अभी जाग गए उनको लगता है कि अभी मैं और अच्छा कर सकता था, थोड़ा अगर पहले और तैयारी शुरू करता, तो अभी टाइम बीता नहीं है। आप घबराओ नहीं, आपसे जो हो रहा है उसको करो, आप सारी चीजें नहीं कर सकते और देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो जेई मेंस 2 बार होगा, जिन लोगों को लगता है कि इस बार वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है, वो घबराए नहीं, ठीक है। जो भी उनसे हो पा रहा है लॉजिकली उसको करें, ठीक है। सेकेंड सेशन में आप डेफिनेटली बेटर करोगे अलॉन्ग विथ जेई एडवांस, ठीक है। तो मस्त रहिए, राइट। थैंक यू।